When it comes to oscillation, we know that K oscillation is defined as the back and forth motion is back and forth motion of an object. यहाँ पे एक और टर्म भी यूज होती है which is periodic motion. Periodic motion and oscillation is discussed in a way that periodic motion is basically to and fro motion, back and forth, to and fro, same meaning, to and fro motion after regular interval of time. Right after that, we jump to simple harmonic motion, and simple harmonic motion is the one in which acceleration is proportional to displacement and is always towards mean position. So this negative sign shows that it's opposite to the direction of displacement, but is proportional in magnitude to displacement. In order to explain this, we took help from the mass spring system. If you guys recall that if a spring is attached, this is its mean position, which is x equals to 0. When I am displaced to the extreme position where x equals to x naught, the acceleration is proportional to x but is towards the mean position. So the negative sign indicates that. From there, we got the equation of simple harmonic motion for a mass spring system. This is mass spring system, and the second system that we discuss is, what is the second system that we discuss in simple harmonic motion? Pendulum. Yes, simple pendulum. So from here, we took help from Hooke's law, which told us that F is equals to Kx. And we also discussed that F equals to Ma. So from there, we got Ma equals to Km, where with the, sorry, Kx, where, hold on. Kx, the x is the displacement, and the negative sign again obviously indicates. How did we get this negative sign at the first place? That if F equals to Kx is the reaction force, action force, the reaction would be equal in magnitude but in opposite in direction. So from there we got this negative sign from the Hooke's law. Again, if this is the action force, this is the reaction force by the spring. So minus Kx here indicates that one. So from here, if we rearrange the equation, A would be equals to minus K M into X. Here, keep this in mind, Ali, you and me discussed that before, that for the mass spring system, omega equals to K over M, if you recall, and for simple pendulum, it's L over G. So this is the equation from where we got K. Whenever there is a system like this mass spring system, the value of omega would be K over M. Keep this in your mind that for mass spring system, if any system that is somehow matlab, appears like a mass spring system, for that omega would be K over M. Shortcut note है इसके लिए. So if K is a mass spring system, which is a constant, and mass for the spring would also be constant. So from there, A would be proportional to minus X. So hence simple harmonic motion, the definition for simple harmonic motion is justified, which tells us that acceleration is proportional to displacement and is always towards the mean position. From there, we went to the equation where we discussed frequencies 1 over time and omega equals to 2 pi by f. So 2 pi f, sorry. 2 pi f. So in the pendulum system, omega is equals to L over G. L over G. When we'll get to that, I'll explain to you how did we get that. But keep this in mind for this particular portion. We already have done that omega. How do we get omega equals to 2 pi by t? कैसे हुआ था हमारे पास? S is equals to r theta, S is equals to
V over T, and R equals to 2 pi, and from there V is equals to R omega, I guess we put किया था. So let's not get into that. That would be something that we do not need to do. Anyhow, simple harmonic motion के अंदर the very first equation that we did was the simple harmonic motion and circular motion का linkage. From there, the very first equation that we got was x is equals to x naught sine omega t. अगर हम उसका क्विक रेफरेंस लें तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था. उस सर्कल के अंदर हमने we had a pointer which was moving back and forth on the diameter. I think so I can get a circle here, and that would be more neat. Let me just redraw the circle with the proper shape so that I could. So, so we have a circle on which the pointer particle P is moving. Also, there's a pointer attached which is moving up and down on the diameter, such that the particle P motion and the pointer N motion is synchronized with each other. That is, when this particle P is moving across the circle, the pointer N is moving up and down accordingly. So if this is the radius, or we could say the maximum displacement, and this is the displacement of instantaneous displacement, and this is the angle theta. If we draw the diagram of this vector, we'll get sin theta किसके इक्वल होता है? Let me redraw this diagram here. Um, this is pointer N. This is particle P motion. Sorry, N. Its displacement is x, which is instantaneous displacement. And pointer P displacement is maximum displacement or amplitude. Now, if you consider this theta angle, triangle sine of theta equals to what? किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के. सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रहा है? इस ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर x, एंड हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है उसका ऑपोजिट? x नॉट. सो फ्रॉम हेयर we got x equals to x naught sine theta, and we know that theta equals to omega t के इक्वल होता है. So x is equals to x naught sine omega t. We could also put the value here where omega equals to 2 pi f. So it could also be written as x naught sine 2 pi f into t. These equations are important because sometimes there comes a question where they ask us to use these equations. On the contrary, we went for the velocity equation. Velocity की equation क्या थी? V is Well, sir, equals is to it omega adjust? into x naught square minus x square, and A की equation क्या थी? Minus omega square x. Yes, क्या कह रहे हैं आप? In the diagram you made, isn't x adjacent? This one? Yeah. मैंने उसको redraw किया है यहाँ पे, but so here we have these equations, and then comes the horizontal mass spring system. Sorry, क्या कहते हैं उसको? मास स्प्रिंग सिस्टम की तो हमारी बात होगी मैंने कि A इक्वल्स टू माइनस
k over m equals to x and a is also equals to minus omega square x। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करते हैं, so omega square x equals to minus k over m into x। This is the mass spring system acceleration. This is circular motion acceleration. When a system is moving in a circular motion, so x cancel out हो जाएगा, negative negative से cancel out हो जाएगा, omega would come out to be k over m। So keep this in your mind whenever we're discussing about the mass spring system, we go for this equation. Moving on to these equations, this everything will be put into all the systems. Like we could put the value here as well, according to which omega would v would come out to be under root k over m into x naught square minus x square, or we could also write it as x naught into k over m into 1 minus x naught square minus x square by taking x naught common, ठीक है, and putting it out in order to discuss when the velocity will be maximum and velocity will be minimum. So when if we put x equals to 0, we'll get v is equals to x naught into k over m. Okay, which means at mean position velocity जो है वो maximum होती है। If I put x equals to x naught square, x naught in this equation, then 1 minus 1 would be 0, and 0 into k over m again 0, and v would be 0 at extreme position. So when it comes to oscillatory motion, velocity is 0, which again would in a way हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं, जब वो हमने ग्राफ्स बनाए थे उसके के और पोटेंशियल एनर्जी वाला टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल। तो वहां जाके ये पॉइंट फिर अगेन वैलिडेट हो जाएगा। जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, वी नो दैट कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गेट इनटू दैट, बट वो समहाउ ना इसका रिलेशनशिप उसके साथ बिल्डअप होता है। हमने वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स किया था ना हॉरिजॉन्टल सर्कल के केस में, यू हाँ गाइस रिमेम्बर। और हमने उसमें कहा था कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन द स्ट्रिंग यहाँ पे टी है, उसका जो क्या कहते हैं, जो वेट का कंपोनेंट, उसका टी का जो कॉस का कंपोनेंट है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वो, और साइन का कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है। डू यू गाइस रिकॉल दैट? Yeah. सो वहां से हमने W इज इक्वल्स टू टी कॉस ऑफ थीटा निकाला था एंड एफ सी इक्वल्स टू टी साइन ऑफ थीटा निकाला था। याद है? yeah. Then it was W F equals W tan या theta. हम इसको एम जी साइन ऑफ थीटा के केस में भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग ये एम जी है, इसका साइन कंपोनेंट जो है ये बनेगा, सॉरी कॉस कंपोनेंट ये बनेगा, एंड साइन कंपोनेंट, सो टेंशन की डायरेक्शन में कौन सा एक्ट कर रहा है, एम जी कॉस ऑफ थीटा, एंड वहां पे टुवर्ड्स सेंटर जो है एम जी साइन ऑफ थीटा का है। यहां से भी हम निकाल सकते हैं उसको टुवर्ड्स दी सेंटर। सो यहाँ से एम जी किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा, फ्रॉम देयर एम वी स्केयर ओवर आर इंटू एम जी साइन ऑफ थीटा, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। वी स्केयर ओवर आर किसकी वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन की। ओके, फॉलो अप करते रहो ताकि मैं वो एल ओवर जी की क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखा दूं तुम लोगों को। जी।
यहाँ से वी स्केयर ओवर आर एक्सेलरेशन बन गया, यहाँ से जी साइन ऑफ थीटा आ गया। अब क्लियरली ये एंगल बहुत स्मॉलर होता है, सो हम साइन ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं। नो नो साइन और कॉज एनीथिंग। सो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ थीटा के। तो हमने ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे न्यूटन सेकेंड लॉ की जगह में एफ इक्वल्स टू एम ए की जगह पे इसको एम जी थीटा के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब अगेन वो, और फिर यहाँ से हमारे पास फर्दर ऑन हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, एस ओवर आर के। और यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, एस किसको शो करा होगा, आर्क लेंथ किसके किससे रिप्लेस हो जाएगी, 2 पाई उसकी आर। डिस्प्लेसमेंट से। और आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, उसके लेंथ से। तो थीटा की जगह पे अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर दें तो एम जी एक्स ओवर एल बन जाएगा। सॉरी, हाँ एम जी बन रहा है, एम जी एक्स ओवर एल। यहाँ तक फॉलो है। जी। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा जी एक्स ओवर एल विद नेगेटिव साइन, अगेन पुट कर लेते हैं उसको। वी नो दैट ओमेगा ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में रिलेट कर देंगे। माइनस का साइन बेटे इसलिए है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है उसकी, ये माइनस के साइंस मैंने बार बार नहीं थ्रू आउट मेंशन आउट किए, बट ये इसमें पुट इन हो जाएंगे क्योंकि हमारा वो डिटेल टॉपिक उसमें है नहीं। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, जी एक्स ओवर एल के। ये इससे कैंसिल आउट हो गया एंड ओमेगा केम आउट टू बी जी ओवर एल। तो वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी। और अगर ओमेगा की वैल्यू ये है और हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो यहाँ से ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा, टी सॉरी किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा के। एंड जब हम टी की ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई एल ओवर जी इज इक्वल्स टू टी। ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको ओ लेवल्स में पढ़ाया था, वो बेसिकली ऐसे ड्राइव होता है। सो अब दो जो मेजर चीजें हैं वो ये वाली इक्वेशंस, कि हमें ये वाली इक्वेशंस याद रखनी है। मैं इसको ब्लू से कर लेता हूँ, ये तो डार्क ही कलर हो गया, मुझे लाइटर शेड चाहिए। हो ही नहीं रहा। एनी हाउ दीज इक्वेशंस, when it comes to simple harmonic motion, these all equations are valid. फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस किया था कि वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1/2 के एक्स स्क्र के। इफ यू गैस रिमेम्बर हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था इस टर्म में, एएस में भी एंड ओ लेवल्स में भी। इफ नॉट एनी इलास्टिक हाउ कीप दिस इन। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। हाँ। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के। और अगर हम x को इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वुड कम आउट टू बी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। हेंस एट मैक्सिमम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। वी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी की वैल्यू हमारे पास हमने प्रीवियसली क्या फाइंड आउट की थी, एक्स नॉट इंटू के ओवर एम इंटू 1 - x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो अगेन एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक्स नॉट नहीं आता, हाँ वैसे एक्स नॉट ही आता है।
x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 पुट करें यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 mx0 k ओवर m, और सॉरी v स्केयर था ना, तो ये स्केयर से स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्केयर रूट सॉरी, और x0 स्क्वायर हो रहेगा। हाँ यहाँ पे ये mx0 स्केयर बन जाएगा हमारे पास, और ये भी रीअरेंज हो जाएगा, इसका भी ये हटा दें, तो यहाँ से से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 क्या आ जाएगा, kx0 स्केयर। ये कब वैल्यू थी, जब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, एंड वन हम x इक्वल्स टू x0 पुट करेंगे इन द इक्वेशन, 1/2 mx0 स्केयर into k over m into 1 - x0 स्केयर ओवर, अब x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, x0 स्केयर, सो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/2, मतलब 0 आ जाएगी पूरी की पूरी, वो 0 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो, सो वी could write as at x equals to 0, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आई, 1/2 kx0 स्क्वायर के, एंड काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आई, 0 के, एंड एट x equals to extreme position potential energy come out to be 0 and kinetic energy come out to be 1/2 kx0 square. As the equations are telling that the equations are identical, which means energy conservation भी यहाँ पे exist कर रही है. So on that basis हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, which सर looked ऑपोजिट है। somehow, x = 0 sorry, is half kx0 स्क्वायर। हाँ वो एक हाफ भी इक्वेशन भी बनती है जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमारे पास वो एक नहीं नहीं, मैं सर्कल बोल सी रहा वैल्यू हूँ नहीं बनी यू थी। स्विच देम। ओ हाँ, जल्दी जल्दी मैंने वो करती हूँ, थैंक यू। मैं बल्कि दोबारा लिखने की बजाय मैं यहाँ पे x0 लिख देता हूँ और यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। जल्दी जल्दी ये सारा काम हो गया, x = 0। अच्छा देन हमारे पास जब अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। हम फाइंड आउट कर रहे हैं एट एनी पॉइंट एक्स के ऊपर, ठीक है, फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो हमारे पास टोटल एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी की क्या बनेगी, 1/2 kx0 स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर ओवर x0 square. I think so. I made a mistake in all of the above equations where I have written x0 in the top. हाँ, मैंने सब में x0 टॉप पे लिख दिया था। जब हम x को कॉमन ले रहे हैं तो वो x0 बॉटम पे आएगा, और हमने ये पॉइंट आउट नहीं करवाया। x0 will be in the bottom position everywhere। मैंने ऊपर तो कहीं पे नहीं लिख दिया। Hmm, हाँ यहाँ पे लिखा है, इसको रेस कर दूँ, x0 स्क्वायर बॉटम पे आएगा। इक्वेशन तो समझ में आ गई ना बच्चों? डू आई नीड टू सॉल्व इट कि वाई आई एम पुटिंग एक्स नॉट इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि हाँ, मैंने एक्स नॉट को कॉम, हाँ, नहीं समझ आ गई है। होल्ड ऑन, उसको भी ना बस कर दिया था, एक्स स्क्वायर एंड x0 स्क्वायर।
मुझे जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगा ना तो मेरे ध्यान में आया, इसको मैंने ऐसे पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी का ये आ गया पोर्शन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच वॉज 1/2 के एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएगा ये फैक्टर, प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। सो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। हेंस प्रूव हो गया कि व्हेन इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारा जो जो है उसके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक। आपका माइक म्यूट है। Kinetic energy came out to be 1/2 kx naught square, and again the total energy also came out to be 1/2 kx naught square. Hence the energy conserves remain conserved in simple harmonic motion। अगर हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, showing that at x naught it's 0, at x it's maximum. Similarly, potential energy showing that it's maximum at x naught and minimum at x value. So we also draw a straight line which indicates that this is the total energy of the graph. So अगर हम E वर्सेस T के अगेंस्ट ग्राफ बनाए तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। We get like this। ये मेरे पास, ये कौन सी होगी, काइनेटिक होगी पोटेंशियल होगी जो मैंने अभी ड्रॉ किया। स्टार्ट किधर से होगी मतलब? क्लियरली यहाँ से एक्स नॉट या एक्स जीरो? ये मैंने एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। सो एट जीरो इट्स मैक्सिमम, ऑब्वियसली इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। ये कैसे रेज हो गया? कंट्रोल जी ट्राई करें। नेवर माइंड। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम उनको टाइम पीरियड्स में डिवाइड करें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास t/4 होगा, ये t/2 एंड ये 3t/4 एंड दिस पॉइंट t होगा हमारे पास। एंड अगेन स्ट्रेट लाइन जो उसको टच कर रही होगी दैट वुड बी total energy. Simple harmonic motion is the one that conserves energy. Then comes the last topic of the oscillation, which is resonance. How do we define resonance? The maximum amplitude with which the object oscillates when natural frequency of the oscillator
becomes equals to Driving frequency. yes, becomes equals to forced oscillation. यहाँ पे हमने एक और पॉइंट भी पढ़ा था विच वॉज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर. ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर को कैसे एक्सप्लेन करते थे? ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड फ्री ऑसिलेशन की टर्म में हमने पढ़ा था. फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं कि वंस गिवन अ पुश कीप्स ऑन मूविंग. ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि वी हैव टू कीप गिविंग द फोर्स अगेन एंड अगेन टू दिस. So when the natural frequency, for example, we're talking about a swing set कि हम swing के अंदर हम लोग whenever the person comes in front of us हम उसको push देते हैं push देते हैं push देते हैं. There a point comes when it moves with the maximum amplitude. So when our applied frequency and the natural frequency of the oscillator becomes matches with each other, then the objects oscillate with the maximum frequency, which is known as resonance. This phenomena is known as resonance. ये multiple areas में apply होता है और फूड कुकिंग वगैरह माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ये सब मैच करती हैं फूड की फ्रीक्वेंसी. दैट वाइज जो है फूड जो है वो कुकअप हो जाता है. डैम्पिंग का फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था. डैम्पिंग हमारे पास क्या होती है? हाउ डू वी डिफाइन डैम्पिंग? इट इज अ प्रोसेस where energy is dissipated from the system. फिर हमने उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े थे. डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ तो नहीं, सॉरी, हमने शेप्स पढ़ी थी डिफरेंट कि अगर बहुत स्टीप होगा इट मीन्स कि वो उसकी डैम्पिंग क्या है, स्मॉल है. अगर हमारे पास थोड़ा उससे लेस स्टीपर आएगा उसकी उससे ज़्यादा होगी. और अगर बहुत ही फ्लैट आ रहा है तो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम डैम्पिंग होगी. और इन सारों की एक लाइन होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का F0. हैविली डैम्प सिस्टम जो है वो तकरीबन फ्लैट होगा और जो लीस्ट डैम्प सिस्टम होगा उसमें हमारे पास क्या आएंगे, शार्पर कर्व्स आएंगे. तो दैट्स इट फॉर ऑसिलेशंस टुडे. एंड